Hello students, myself Bafna ma'am. Now we will continue with next video of right of unpaid seller and remedial measures. Now who is an unpaid seller? We will see who is an unpaid seller. अनपेड सेलर किसको कहते हैं? जिस सेलर को पे नहीं किया है, ही इज़ एन अनपेड सेलर. The seller of the good is deemed to be an unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered, or यानी whole of the price has not been paid or tendered, or where a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the same has been dishonored. Okay. In other words, an unpaid seller is the person who has sold the goods on cash basis. यानी उस सेलर ने बायर को बेच दिया है कैश के बेसिस पे, बट हैज़ नॉट रिसीव्ड द होल प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बायर. बट बायर से पूरा पैसा नहीं मिला है अभी. सो इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, द सेलर इज not an unpaid seller, but such a seller would become an unpaid seller after the term of the credit has expired. अभी जो टर्म दिया गया है, क्रेडिट जो पैसा देना है उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है एंड द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड टू हिम. प्राइस अभी पे किया नहीं है. Where the whole price of the goods has been tendered to the seller and he wrongfully refuses to accept it. And if he would not be an unpaid seller. Even if the part of the price remains unpaid, the seller would remain an unpaid seller. अगर पार्ट पेमेंट भी बाकी रहा है उसको भी अनपेड सेलर ही कहा जाएगा. ओके. नो अभी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या है? जो सेलर है उसको पे नहीं दिया है, यानी बायर ने पैसा नहीं दिया है, उसके पास क्या राइट्स है? तो राइट्स उसके पास है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहा गया है. 2 टाइप्स ऑफ राइट्स है. द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली. अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर पर्सनली, ये 2 राइट्स दिया है. सो अभी फर्स्ट हम लेते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स. अगेंस्ट द गुड्स यहाँ पे एक दिया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पेपर पे देखते हैं. यहाँ पे लिखा है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स. See, following rights are there irrespective of the fact that the property यानी जो ownership in the goods has passed to the buyer. See, where the property in the goods has passed to the buyer, अगर जो goods है, जो property है वो pass out हो गई है buyer को. Second point है the right of lien. Lien का क्या मतलब है? Right to retain the possession of the goods. यानी तो वो जो सेलर है वो अनपेड है, ही कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड. जब तक वो पेमेंट पूरा नहीं देता है ही कैन रिटेन द गुड्स, यानी अपने पास वो माल रख सकता है सेलर. So the seller, the unpaid seller is in the possession of the goods sold, has right to exercise his lien on the goods in the following cases. The following cases say he can exercise his right. See, where the goods have been sold without any stipulation as to credit, okay, or where the goods have been sold on credit, credit पे sold out किया है, but the term of the credit has expired, यानी जो credit जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गया है, और वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यहाँ पे बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ही कैन रिटेन द गुड्स इवन दो द पीरियड ऑफ द क्रेडिट मे नॉट हैव येट एक्सपायर्ड. द क्रेडिट का जो पीरियड टाइम है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, लेकिन बायर इंसॉल्वेंट हो गया है. सो द राइट ऑफ लीन इज रिलेटेड टू द पोजेशन एंड नॉट विद द टाइटल ऑफ द गुड्स. सो जो यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, तो गुड्स वो पोजेस कर सकता है, ना कि टाइटल की बात, ओनरशिप की बात नहीं है यहाँ पे. इट इज़ बेसिकली ए राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर.
See, an unpaid seller's lien can be exercised as long as the seller remains in the possession of the goods. हाँ, he can exercise the right of lien. जब तक उसके पास माल है तब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है, अपना राइट अधिकार कर सकता है. But even if he possesses the goods as agent or bailey for buyer, sections 47 subsection 2. See, the fact that the ownership of the goods has been transferred to the buyer will not affect his right as long as the seller is in actual possession of the goods. See, अभी ownership तो वो ट्रांसफ़र हो गई है बायर, बट इट विल नॉट अफेक्ट द राइट. वो राइट अफेक्ट नहीं होगा सेलर को, क्योंकि जो गुड्स है उसको एक्चुअल गुड्स है उसके पास ही है, पोजीशन उसके पास ही है. So the right of lien can be exercised only for the non-payment of the price. The right उसके ऊपर एक्सरसाइज कब कर सकते हैं? बायर के ऊपर, क्योंकि अभी only for the non-payment कि अभी आपने पेमेंट नहीं दिया है, and not for any other charges. तो दूसरे चार्जेस के लिए वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है राइट, सच एज मेंटेनेंस और कस्टडी चार्जेस एक्सेट्रा. सो वेयर एन अनपेड सेलर, यानी जो अनपेड सेलर है यहाँ पे नहीं किया है उस सेलर को, हैज़ मेड ए पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स. अगर उसने डिलीवरी किया है एक पार्ट डिलीवरी किया है गुड्स की, ही कैन एक्सरसाइज हिज लीन ऑन द रिमेनिंग गुड्स. तो वो जो अधिकार जता सकता है जो रिमेनिंग गुड्स है उसके पास जो डिलीवर नहीं किया है, unless such part delivery has made under such circumstances to show an intention to deliver the whole of the goods and waive the right of lien. Okay, here right of lien, he can possess the good. जब तक वो पेमेंट नहीं मिलता है तब तक वो गुड्स अपने पास ही रख सकता है सेलर. सो व्हेन राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट, यहाँ पे ये बोलता है, ये कहा है व्हेन राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट, कब राइट लॉस्ट खत्म हो सकता है. सी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट राइट ऑफ लीन डिपेंड्स ऑन फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स. यहाँ पे फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स की बात चल रही है. वंस द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज लॉस्ट, द राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट. Okay, so hence unpaid seller loses his right of lien on the goods in following circumstances. Following circumstances पे seller cannot, जो unpaid seller है, he cannot claim his right. See, when he delivers the good to carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer, वो ट्रांसमिट कर रहा है या डिलीवर कर दिया गुड्स को कैरियर को या बेली को, या ट्रांसमिट कर दिया पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. यहाँ पे वो रिजर्व नहीं कर रहा है सेलर अपने राइट्स को, तो ही लूजेस हिज राइट हियर. फर्स्ट पॉइंट हियर, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी बायर और एजेंट लॉफुली ऑब्टेन कर लिया है गुड्स को, तो राइट ऑफ लीन, the seller do not have right of lien on the goods. When he voluntarily abandons the right of lien on goods, अभी ये voluntarily abandon किया है right seller ने. Next point है where the buyer further sells the goods with the consent of the seller. अभी buyer further sells the good, buyer क्या करता है, further उसको sell करता है with the consent of the seller, though unpaid seller loses his right here. Next here, where the buyer having lawfully obtained the document of the title of the goods has further transferred the document by the way of sale to the person who takes the document in good faith for consideration. So here again the seller has lost his right. So it is pertinent to note that once the right of lien is lost, it cannot be received even the buyer redelivers the goods to the seller. See, again it is been told here, once the right of lien is lost, seller's right is lost, he cannot be received even if the buyer redelivers the good. यहाँ पे वो रिसीव नहीं कर सकता अगर बायर रीडिलीवर करता है गुड्स को सेलर को फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस,
सी एग्जाम्पल यहाँ पे एक है, वी विल सी हियर द एग्जाम्पल. See here. Sorry, I'm really sorry. We will see here the example. If a scooter is sold and delivered to the buyer, and due to some problem in the engine, the buyer delivers the scooter again to the seller for repair. At this stage, seller will not have right to lien over the scooter, so he cannot retain the good whatever it has been sold. Okay. So next point is here is right of an unpaid seller against the good. Again, third point here is rights of stoppage of good in transit. See, right of stoppage of good in transit means the right of stopping while they are in transit and regaining possession of them so as to retain them till the full price is paid by the buyer. यहाँ पे सेलर स्टॉप कर सकता है गुड्स को जब तक बायर ने पूरा पैसा नहीं दिया है. अगर वो गुड्स ट्रांसिट में है तो ही कैन पोजेस अगेन एंड ही कैन रिटेन टिल द फुल पे प्राइस इज बीन पेड बाय द बायर. ओके, ही कैन स्टॉप. तो वो माल अभी आगे ट्रांसिट में नहीं, अगर बेचा भी है तो उधर वो स्टॉप कर सकता है क्योंकि बायर ने पूरा पैसा नहीं दिया है. This right is exercised normally when the goods are with the carrier for the purpose of transmission to the buyer. ये normally goods are with the carrier. ये right कब exercise कर सकता है seller? When the goods are with the carrier for the purpose of transmission to the buyer, the carrier should be an independent entity and should not be an agent of either seller or buyer. या तो कैरियर को कौन रहता है? ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. ही शुड नॉट बी एन एजेंट ऑफ सेलर और अ बायर. सो द राइट एंटाइटल्स द सेलर टू रीगेन पोजीशन. तो राइट यहाँ पे सेलर को मिलता है. ही कैन अगेन गेट द पोजीशन even when the seller has parted with the possession of the goods. Even when the seller has parted with the possession of the goods. Okay. The right of stoppage of goods in transit can be exercised only when the buyer becomes insolvent. या तो buyer insolvent हुआ है तो seller आके goods को आगे buyer तक पहुंचाने तक वो स्टॉप कर सकता है कि भाई buyer अभी इंसॉल्वेंट हो गया है. द गुड्स आर इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट. द गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है. And the buyer is said to be insolvent if he has ceased to pay his debts. कि अभी वो अपना पैसा नहीं दे पाएगा in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due. कि अभी ये ड्यू हो जाएगा, अभी वो पूरा पैसा नहीं दे पाएगा. So for this purpose it is immaterial whether he is actually declared an insolvent or not. ये इमेटीरियल है कि वो एक्चुअली इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर सेलर को मालूम हो गया है कि उसके पास पैसे नहीं है, अगर मैं माल उसके तक पहुंचाऊंगा तो वो पैसा नहीं दे पाएगा और जो पैसा है वो मेरे ऊपर ड्यू रहेगा, तो ही कैन स्टॉप फ्रॉम इट. ही कैन स्टॉप दोज गुड्स इन ट्रांसिट. ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट. So goods are deemed to be in the course of transit from the time they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer. यहाँ पे goods को transit इसलिए किया गया है कैरियर में और बेली में कि वो buyer को मिल जाए. The buyer or his agent takes the delivery of them. या तो buyer या उसका agent डिलीवरी लेता है गुड्स का. The goods are still considered to be in transit if they are rejected by the buyer. The goods को still considered कहा है कि भाई वो ट्रांजिट में ही है, अगर फिर भी उसने रिजेक्ट किया है बायर ने. ओके,
सो व्हेन राइट ऑफ स्टॉपेज इज लॉस्ट, अगर सेलर जो अपने गुड्स को स्टॉप कर सकता है बायर तक पहुंचाने तक, तो कब वो राइट स्टॉपेज करने के लिए कब लॉस्ट, मतलब यानी व्हेन द राइट ऑफ स्टॉपेज इज लॉस्ट, कब खत्म होता है ये राइट, कब खत्म होता है? द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांसिट इज लॉस्ट व्हेन द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, जब ट्रांजिट खत्म हो जाता है। एंड ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये फॉलोइंग केसेस क्या है? व्हेन द बायर और हिज एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो बायर या एजेंट उसको डिलीवरी मिल गई है गुड्स की, ओके, बिफोर देयर अराइवल एट द डेस्टिनेशन, या पहले डेस्टिनेशन के पहले ही उनके हाथ में लग गया है वो गुड्स, तो सेलर की राइट्स टू स्टॉप इज लॉस्ट। When the buyer or his agent takes delivery after the goods have reached the destination, भाई अभी डेस्टिनेशन आ गया है और उनके हाथ में मिल गया है, तो जो राइट्स है स्टॉपेज का सेलर का, दैट इज लॉस्ट। इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन, अभी गुड्स अराइव हो गया डेस्टिनेशन पर, द करियर एक्नॉलेज टू द बायर, द करियर जो है कैरियर, ही एक्नॉलेजेस, जो इंसान एक्नॉलेज करता है बायर को, दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ, यानी बायर को बोलता है कि भाई आपका गुड्स आपके बदले में मैं संभाल के रखा हूँ, आप आके लेके जाइए, तब सेलर का राइट लॉस्ट हो जाता है। ही कैनॉट स्टॉप। सी व्हेन पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन मेड, यानी थोड़ा पार्ट का जो गुड्स है डिलीवरी हो गई है बायर तक, विथ एन इंटेंशन ऑफ डिलीवरी द होल ऑफ द गुड्स, उसका इंटेंशन सेलर का है कि भाई फुल होल गुड्स को डिलीवर करना है। द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो विच आर स्टिल इन ट्रांजिट, ओके। तो ट्रांजिट कम्स टू एन एंड यानी ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाता है, रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो विच आर स्टिल इन ट्रांजिट, जो ट्रांजिट में भी है, तो दैट ऑल्सो कम्स टू एन एंड। सो द सेलर right of stoppage is lost here in these following cases, in these 5 following cases, okay. So next we will see how to exercise right of stoppage in transit। यहाँ पे ये कहा है, now we will exercise the right of stoppage in transit। See, if the unpaid seller may exercise the right of stoppage of goods in transit by actual taking possession of the goods, उसमें क्या कर सकता है, वो अपना गुड्स फिर से ले सकता है पोजीशन, टेकिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स, एक्चुअली टेकिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स। सेलर क्या करता है, क्या कर सकता है, ही कैन टेक द पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय गिविंग नोटिस ऑफ द सेलर्स क्लेम टू द करियर। यहाँ पे नोटिस दे सकता है सेलर्स क्लेम टू द क्लियर, सेलर क्लेम कर सकता है करियर को नोटिस दे के और बेली को, इन हुज पोजीशन द गुड्स आर। He can give notice, seller can give notice to the carrier or the other bailey कि भाई मेरा गुड्स किसके पास है, किसके पोजीशन के अंडर है। सो सच नोटिस मे बी गिवन आइदर टू द पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन, जो एक्चुअली जो पोजीशन रखा है, जो माल लेके बैठा है उसको नोटिस देते हैं, और टू हिज प्रिंसिपल, यानी जो ओनर है जो लेके रखा है प्रिंसिपल। In the later case, the notice must be given in sufficient time। यहाँ पे क्या कहा है, नोटिस जो सेलर अपने माल किधर रखा है, यानी जो गुड्स कहाँ पे रखा है, तो विद इन द रीजनेबल टाइम में वो नोटिस पहुँचना चाहिए जिसके पास उसका खुद का गुड्स है, सेलर का गुड्स है। To enable the principal to communicate the same to his agent so as to prevent the delivery of goods to the buyer, okay. See, when the notice of stoppage of transit is given by the seller to the courier or the other bailey in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the direction of the seller, according to the direction of the seller, जो direction देता है seller करियर या अदर बेली को, ही शेल रीडिलीवर द गुड्स,
यानी वो लोग फिर रीडिलीवर द गुड्स करेंगे, यानी गुड्स को रीडिलीवर करेंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ सच रीडिलीवरी आर टू बी बोर्न बाय द सेलर। तो अगर वो रीडिलीवरी करेंगे वो गुड्स को, तो चार्जेस सेलर को पे करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी हैव सीन हाउ टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, the rights of unpaid seller, and we will see the distinction between the right of lien and right of stoppage in transit. Okay, so distinction between right of lien and right of stoppage in transit. What is right of lien? Lien is a right to retain the possession of the goods. यहाँ पे जो गुड्स है को खुद के पास रख सकते हैं, यानी ही कैन रिटेन दैट पोजेशन, खुद के पास यानी पोजेस कर सकते हैं। राइट ऑफ लीन का मतलब ये है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अ राइट टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, अगेन रीगेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, अगेन यू आर गेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, अंडरस्टूड। यहाँ पे रिटेन द पोजेशन, यहाँ पे रीगेन द पोजीशन है। ओके, लीन कैन बी एक्सरसाइज इन ऑल द केसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर। सी, लीन कैन बी एक्सरसाइज इन ऑल केसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर। यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज ओनली वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहाँ पे स्टॉपेज कैसा हो सकता है? व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। See, lien is available only when the goods are in actual possession of the seller. कि अभी सेलर के पास वो पोजेशन है उन गुड्स का, तो लीन इज अवेलेबल। यानी राइट ऑफ स्टॉपेज इज अवेलेबल व्हेन द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजेशन। सेलर हैज पार्टेड विद द पोजेशन एंड द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैरियर, यानी गुड्स को उसने आगे डिलीवर कर दिया है इंडिपेंडेंट करियर के पास। यानी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अवेलेबल व्हेन द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन एंड द गुड्स आर इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट करियर। तो अभी वो पोजीशन किसके पास है? इंडिपेंडेंट करियर के पास है। सो फोर्थ पॉइंट हियर इज लीन कम्स टू एन एंड when the seller loses the possession of the goods। यहाँ पे right to retain the goods का कब होता है? कब? when it comes to an end, when the seller loses the possession of the goods। अभी सेलर के पास अभी वो पोजेशन, गुड्स का पोजेशन है ही नहीं है, तो that lien comes to an end। The right of stoppage in transit commences when the seller loses the possession of the goods sold and it continues until the buyer acquires their possession। यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या है? ट्रांजिट commences when the seller loses his possession of the goods sold। He loses the possession of the goods sold and it continues until the buyer acquires their possession। अभी बायर कब acquire करेगा their possession? The right of stoppage, in transit the seller loses the possession। यहाँ पे seller कब lose करता है? when buyer acquires their possession। See, from the above discussion we can say that the right of stoppage of goods in transit is extension of the right of lien। Okay, there is an extension of right of lien in the sense that the right of stoppage of goods in transit begins when the right lien ends। When the right lien ends and the purpose of the right of stoppage in transit is to regain the possession of the goods। Okay, so there is a neat clean clarity here over in this। Now what are the effects of subsale or pledge by buyer? See, the unpaid seller right of lien and the stoppage of good in transit is not affected by any subsale or pledge। It will not affect when it is in transit, these goods are in transit, it is not affected by any subsale or pledge made by the buyer
See, unless the seller has by his own conduct assented to it, जब तक सेलर खुद होके उसकी कंडक्ट से वो बता नहीं देता है, तो अनपेड सेलर राइट ऑफ रीन एंड स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांसिट इज नॉट अफेक्टेड. वो अफेक्ट नहीं होगा सेल या प्लेट से, सब सेल से या प्लेट से. सी हाउ ओवर राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट are affected by sale or other disposition of the goods by the buyer when the documents of the title to the goods, a bill of lading or railway receipt has been issued or transferred to a buyer, and the buyer transferred the documents to a person who takes the documents in good faith and for consideration. But if such second transaction is a pledge, अगर वो second transaction pledge है, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit will be exercised subject to the right of the pledgee. Okay? The fourth point here is right of resale. Now what is right of resale here? So the right of resale is very important right granted to an unpaid seller. Resale कब हो सकता है? This is the right granted to an unpaid seller. The reason is after exercising the above mentioned right of lien and stoppage in transit, the unpaid seller will have a possession of the goods with him. But if the buyer continues to remain in default, that is does not pay price, then the seller is not expected to keep these goods with him for an indefinite period. Indefinite period तक वो goods नहीं रख सकता है क्योंकि buyer ने पैसा नहीं दिया है. तो स्पेशली व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर गुड्स जो माल है जो पेरिशेबल नेचर के है और बायर ने पैसा नहीं दिया है, तो ही हैज अ राइट टू रीसेल. टू टैकल सच सिचुएशन, सेक्शन 54 गिव्स टू द अनपेड सेलर ए लिमिटेड राइट टू रीसेल द गुड्स इन हिज पोजिशन. See, where the ownership has been already transferred to the buyer in the following circumstances, where the goods are of perishable nature, where such a right is expressly reserved in the contract in the case the buyer makes a default. तो सेलर को कब ये राइट मिलता है रीसेल के लिए? पेरिशेबल नेचर का है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, अगर बायर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, where the seller has exercised right of lien or stoppage of goods in transit and has given a notice to the buyer, कि भाई नोटिस भी दिया है बायर को कि भाई मैं रीसेल कर सकता हूँ वो गुड्स को, एंड द बायर डज नॉट पे, और बायर पे नहीं करता है उस गुड्स का या माल को, पेमेंट नहीं देता है विद इन ए रीजनेबल टाइम, तो right to resale, seller has the right to resale. Now we will see next here is notice of resale. See, after exercising right of lien or of stoppage of goods in transit, unpaid seller may resell the goods to some other person. नहीं, अभी राइट तो मिल गया है कि भाई वो रिटेन कर सकता है गुड्स को, और स्टॉपेज जो गुड्स ट्रांजिट में है उसको स्टॉप कर सकता है, तो अनपेड सेलर जो है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को सम अदर पर्सन को, दूसरे इंसान को. बट इन सच ए केस ही मस्ट गिव ए नोटिस टू द ओरिजिनल बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स. उसको नोटिस देना है बायर को, ओरिजिनल बायर को. एंड आफ्टर रिसीविंग द नोटिस द बायर शुड नॉट हैव पेड और टेंडर द प्राइस विद ए रीजनेबल टाइम. तो बायर उसमें उसने पैसा नहीं दिया है रीजनेबल टाइम में, तो ऑन सच कंडीशन द सेलर कैन रीसेल द गुड्स. वन सच नोटिस ऑफ द रीसेल इज गिवन, एंड इफ ऑन ए रीसेल देर इज ए लॉस ऑफ द सेलर, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बायर. अगर रीसेल इज गिवन एंड इन ऑन रीसेल देर इज ए लॉस, अगर उसको लॉस हुआ है सेलर को, तो वो डिफॉल्टिंग बायर के पास रिकवर कर सकता है. हाउएवर इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑन द रीसेल, द सेलर कैन कीप इट विथ हिम बिकॉज द बायर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक ए बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग. तो जो प्रॉफिट हुआ है सेलर के पास वो अपने पास रख सकता है क्योंकि डिफॉल्टिंग बायर था इसमें. बट इफ द अनपेड सेलर फेल्स टू गिव सच नोटिस टू रीसेल टू द बायर, अगर सेलर नोटिस
अगर नोटिस नहीं देता है बायर को, ही कैन नॉट रिकवर द लॉस फ्रॉम द बायर। तो खुद को जो लॉस हुआ है बायर से नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया है, क्योंकि भाई मैं गुड्स फिर रीसेल कर सकता हूँ करके। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ही हैज़ टू गिव द नोटिस टू द बायर। So this notice gives an opportunity to the buyer either to pay the price or to see that on such resale the goods fetches a proper price। तो बायर को अटमोस्ट केयर देखना चाहिए कि भाई या तो वो पैसा दे या फिर वो गुड्स मालिक को बोल दे, यानी सेलर को, जो ओनर है गुड्स का, तो उसको बोल दे कि भाई आप रीसेल कर सकते हैं। तो राइट ऑफ रीसेल इज ऑप्शनल एंड द बायर कैन नॉट डिमांड रीसेल। सी द राइट ऑफ रीसेल इज ऑप्शनल, यहाँ पे ऑप्शनल है। बायर कह नहीं सकता, डिमांड नहीं कर सकता कि आप रीसेल कर लीजिए करके। सी व्हेन गुड्स आर परचेज बाय द सेकंड बायर इन द अबव सर्कमस्टेंसेस ही विल ऑलवेज गेट ए गुड टाइटल। अभी सेकंड बायर ने गुड्स बाय किया है तो ही विल नॉर्मली गेट ए गुड टाइटल, उसको गुड टाइटल, ओनरशिप टाइटल मिलता है whether the notice of resale to the original buyer was given or not। इसमें अगर नोटिस दिया है कि नहीं दिया है ओरिजिनल बायर को, अगर वो माल रीसेल में सेकंड बायर को दिया है तो ही विल गेट ए गुड टाइटल। ओके, नाउ वी विल सी where the property in the goods has not passed to the buyer। See, if the property in the goods has not passed to the buyer, जो माल है, जो प्रॉपर्टी है, वो पास नहीं हुआ है बायर को, द अनपेड सेलर हैज अ राइट टू विथहोल्ड ए डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सो द अनपेड सेलर जो है उसका हक बनता है कि वो होल्ड कर ले डिलीवरी ऑफ द गुड्स, similar to and coextensive with his right of lien and stoppage of goods in transit। Section 46 subsection 2। सी यहाँ पे क्या बोला है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। सी रेमेडीज ऑफ द सेलर अगेंस्ट द बायर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अनपेड सेलर इन addition to his rights against the goods as discussed above has the following rights। सी अनपेड सेलर इन एडिशन टू द राइट, उसको राइट एडिशन में तो मिला ही है, अगेंस्ट द गुड्स फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली, सूट फॉर द प्राइस, या फिर फर्स्ट पॉइंट क्या है, सूट फॉर द प्राइस। हियर सी वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर एंड द बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो पास आउट तो हो गई है बायर की, एंड द बायर फेल्स टू पे, अभी बायर पे नहीं कर रहा है, फेल हो गया है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट फॉर द प्राइस। सेलर केस दायर कर सकता है फॉर द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर, दोनों के ऊपर। सी इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट द सेल प्राइस इज पेएबल ऑन ए पर्टिकुलर डे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई ये जो सेल प्राइस है पर्टिकुलर डे में पे करना है, ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, जबकि प्रॉपर्टी जो है गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो अभी बायर के पास पहुंची नहीं है, सेलर फिर भी सूट दायर कर सकता है अगेंस्ट द बायर फॉर द प्राइस, बिकॉज पर्टिकुलर डे हो गया है। व्हेन द बायर wrongfully neglects or refuses to pay the price on a particular day, in this case whether the delivery of the goods is made or not is immaterial। अगर goods अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचा है फिर भी वो सेलर सूट दायर कर सकता है, he can file a case upon the buyer because the particular stipulation time has been given on particular date and the price has not been paid। Okay, so he can file a suit against the buyer। The second point here is suit for the damages for non-acceptance। See where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay for them। अगर buyer है ना एक्सेप्ट नहीं करता है गुड्स को और wrongfully नेग्लेक्ट करता है और पेमेंट नहीं देता है, द सेलर इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि बायर अभी ना बोल रहा है तो ही कैन फाइल अ सूट। So where the goods have already
where the goods have a ready market and the seller may recover from the buyer damages equal to the difference between the contract price and the market price on the date of the breach of contract. So, okay. See, when the seller requests the buyer to take the delivery of the goods, but the buyer does not within a reasonable time take the delivery of the goods, seller has a right to recover the damages from the buyer for any loss occasioned by his neglect or the refusal to take delivery for a reasonable charges required for the care and custody of the goods. So, suit for the damages for non-acceptance. Second point is here. Third point is a suit for the special damages. The seller is entitled to recover the special damages also for the such loss which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Okay. The fourth point here is suit for interest. See, unpaid seller is also entitled to get a interest at a reasonable rate. तो सेलर को इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए पे रीजनेबल रेट के. तो टोटल अनपेड प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड फ्रॉम द टाइम इट बिकेम ड्यू अंटिल इट इज एक्चुअली पेड. द सूट फॉर इंटरेस्ट. तो यहाँ पे सेलर कैन फाइल ए सूट फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो. अभी ये सेलर का राइट्स हो गया ये सब. तो अभी बायर के राइट्स देखते हैं. तो बायर के राइट्स क्या है? बायर राइट्स अगेंस्ट द सेलर. तो अभी रेमिडीज सेलर को हो गया. तो अभी रेमिडीज बायर के लिए क्या है? उसके लिए फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द सेलर. सूट फॉर नॉन डिलीवरी. सी वेयर ही wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for the damages for non-delivery. अगर सेलर ने नेग्लेक्ट किया है, डिलीवर नहीं किया है गुड्स बायर को, तो बायर कैन स्यू द सेलर. वो केस दायर कर सकता है for the damages of non-delivery. In this case also, if the goods have a ready-made market, damage will be equal to difference between the contract price and market price. तो damages कैसे आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस डिफरेंस करके उसको damages पे करना है on the date of breach of contract. The buyer can also recover special damage. तो यहाँ पे स्पेशल डैमेज भी रिकवर कर सकता है इफ़ द बायर हैज़ इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. अगर बायर ने कम्युनिकेट किया है कि भाई सर्कमस्टेंसेस ऐसा है टू द सेलर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ओके, स्पेशली कम्युनिकेट किया है सेलर से, तो ही हैज़ टू पे द डैमेजेस. सेलर हैज़ टू पे द डैमेजेस. ओके. Now, second point is suit for specific performance. So, the buyer can also insist for the contract to be specifically performed. It means that the buyer can request the court by filing the suit that the seller may be compelled to deliver the good. यहाँ पे buyer insist कर रहा है कोर्ट से कि भाई कंपेल करो सेलर को कि भाई डिलीवरी करे गुड्स की, which he has agreed to sell as per the terms of the contract. Granting such a remedy is discretionary power of the court. अभी ये कोर्ट के ऊपर निर्णय रहेगा कि भाई वो रेमेडी मिलेगी या नहीं. Hence it will be granted only when the damages would not be adequate remedy. So ये रेमेडी कब मिलेगी? सिर्फ डैमेजेस पे करने से उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, जबकि उसको सिर्फ गुड्स ही चाहिए. बायर को गुड्स ही चाहिए. डैमेजेस से उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल उसको गुड्स चाहिए था, तब कोर्ट ग्रांट कर सकता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी ग्रांटेड इफ द गुड्स आर रेयर गुड्स और यूनिक इन नेचर. एग्जाम्पल, रेयर आर्टिकल्स, ए पिक्चर बाई ए डेड पेंटर और ए एंटीक फोटोग्राफ्स और फर्नीचर. So a suit for specific performance यहाँ पे. ओके. द थर्ड पॉइंट इज सूट फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन. यहाँ पे केस कब दायर कर सकते हैं? देयर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन. सी इफ द सेलर कमिट्स ए ब्रीच ऑफ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस तोड़ा गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर गेट्स राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. तो बायर के पास राइट है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है एंड आस्क फॉर द डैमेजेस. ओके. Now fourth point is suit for breach of warranty. यहाँ पे
ब्रीच ऑफ वारंटी अभी यानी वारंटी को तोड़ा गया है, कैंसिल किया गया है, ही कैन फाइल ए सूट. See, where the seller commits a breach of warranty or the buyer treats a breach of condition as a breach of warranty, the buyer may sue the seller for the damages. यहाँ पे buyer फिर again seller को sue कर सकता है for the damages. So in case of breach of warranty, if the buyer has not paid the price, he may ask the seller for a reasonable reduction in the price. अगर यहाँ पे breach of conditions में breach of warranty को कहा है तो बायर क्या बोल सकता है, भाई देर इज़, आप रिडक्शन कर दीजिए, मेरा जो कंडीशंस वारंटी में बदल गया है तो आप रीजनेबली जो प्राइस है उसको रिड्यूस कर लीजिए. तो फोर्थ पॉइंट ये है. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, सूट फॉर रिफंड ऑफ प्राइस. सी इफ द बायर हैज़ पेड द प्राइस इन एडवांस and the seller has not delivered the goods, the buyer can file the suit for the refund of price. Okay, suit for refund of price. Suit for interest. See, where the buyer has paid the price in advance and the seller commits a breach of contract and the buyer sues for the refund of price, he may sue for interest also. क्योंकि इतना सारा पैसा दिया है, इतने दिनों तक उसका पैसा उसके पास पड़ा है, तो he can sue for the interest also. The court may award interest on the amount of the price from the date on which the payment was made. जिस दिन से पेमेंट दिया है उस दिन से उसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बायर को मिल सकता है. कोर्ट will grant the relief for that. Okay, here we have completed the Sale of the Goods Act, and next chapter will be dealing with the arbitration and conciliation. Okay, see you in the next video.